Namaskar, Uday Sahai ji. Namaskar. Namaskar. Thank you so much for talking to me today. And I really feel it's my privilege to be talking to someone like you, because not every day you get to meet someone who is so versatile, in terms of the things that they do. Because I know you have been a voluntarily retired IPS officer, and today you are one of the most eminent communication professionals in India. In terms of your career profile, you have served at various government positions, positions such as Deputy Director General in Prasar Bharati, then Director Information and Publicity in Delhi government. You have also been an additional Director General Communications in the organizing committee of Commonwealth Games. Correct. So that's really, really nice to know. Today you have you advise various organizations on the you are the communication advisor to various companies like ONGC, Unique Identification Authority of India, the one that gave us Aadhaar, also Lal Bahadur Shastri Institute of Management, and you're also pro chancellor to Indira Gandhi Technological and Medical Sciences University. So इतने प्रतिभाशाली जब व्यक्ति से कभी कोई बात करे तो obviously you feel very proud. So thank you so much. And career front is one side, but along with that, the things that you do, I know that you have been an avid photographer. You have held various photo exhibitions in India as well as abroad. You have a master's in sociology from Delhi College of Economics, and you are pursuing doctorate research in media and advertising from JNU. You have edited or authored various books. I believe so far 7 books. Yeah, and they cover topics such as Kumbh, then Gaya, 2 books on Gaya as well as Bodh Gaya, then Delhi, Arunachal Pradesh, then something very different as renewable energy. You also have written a book called Making News, which was published by the Oxford University Press. Correct. And the reason that we are talking today is your 8th book, and probably the most ambitious project that you might have taken so far, and something that is very close to my heart as a CKP, and I'm sure any Kayastha around, is your next book, which is Kayastha Encyclopedia. Yeah. So I'm so excited to know about this book. When I heard about Kayastha Encyclopedia, I said, wow, this is something as a Kayastha, as a CKP, everyone should know about, So please tell us more about this book. What is it about, and what is the genre that you have followed? How many pages? I'm really excited to know about it. Thank you so much, Varsha ji. It's indeed my great pleasure and a very historic day for me, because मैं अपने CKP बंधुओं से, बहनों से, भाइयों से आपके मदद से इस इंटरव्यू के रीच आउट कर रहा हूँ. तो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, एंड उससे भी बड़ा धन्यवाद जो आपने बहुत जेनरस एक इंट्रोडक्शन दिया. ये एक यात्रा है जिसमें मैं भी हूँ कई लोगों की तरह, लेकिन उस स्टेज ऑफ लाइफ में जहाँ आपका पेट, बेसिक नीड्स भर जाता है, पेट भर जाता है, तो फिजियोलॉजिकल नीड भरने के बाद, सिक्योरिटी नीड समहाउ एस्टैब्लिश होने के बाद, देन यू गेट इनटू अ हायर नीड, व्हाट वी कॉल, या मास्लो के नजर में जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं. तो उससे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं मुझे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आत्मिक सुख मुझे मिले. और एक बहुत बड़ा कारण वो था जो इस किताब को मैंने अटेम्प्ट किया. दूसरा कारण ये भी था कि मुझे लगा कि अपनी कम्युनिटी से, कायस्थ कम्युनिटी से, वी हैव बीन टेकिंग सो मच, बट व्हाट हैव वी एक्चुअली गिवन बैक. वी मींस मैं अपनी बारे में कह रहा हूँ, तो आप वही दे सकते हैं जो आपके पास थोड़ा है. तो लिखने पढ़ने का एक बैकग्राउंड था, लेखन पर चित्रगुप्त जी का एक की कृपा रही, तो वी थॉट माइट एज वेल write a book, and the yatra almost started about 2 years back.
मोटे तौर पे ये किताब का नाम, टेक्निकल नाम है कायस्ताज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज। ये करीब 400 पेज की किताब है और इसमें काफी सारे आपको अनकन्वेंशनल, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड वर्ल्ड वाइड, फ्रांस में और यूरोप में जिस तरह की ऐसी सीरियस लेकिन पेपी किताबें लिखी जा रही हैं, उस जोनर में जिसको मैं कहता हूँ इलस्ट्रस वॉल्यूम, लॉट ऑफ पिक्चर्स, लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस और पेंटिंग्स हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत इसमें एक्सपेरिमेंट्स उस तरह से आपको दिखेंगे। और हमने अपने कम्युनिटी जो कि 21 राज्यों में फैली है और एक यूनिट टेरिटरी में, उसमें उसको बांधने की कोशिश की। इसका इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स कई बार जो जिन कारणों से हुआ वो मैंने बताया, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे याद है कि अबाउट अ ईयर बैक इसी किताब के सिलसिले में इनिशियल डेज में व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद टू लुक एट दी कायस्ताज ऑफ हैदराबाद, तो मेरा ये इत्तेफाक था कि मुझे एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो वहाँ के काफ़ी इलस्ट्रियस फैमिली हैं हैदराबाद की, उन्होंने एक ऑफर किया कि उदय, व्हाई द हेल यू आर गोइंग टू स्टे इन अ होटल, स्टे विद अस एंड इट विल बी आवर प्रिविलेज, and but actually it was my privilege to stay with him because I got an extraordinary insight into the lifestyle of a कायस्थ in Hyderabad. उनकी पत्नी पारसी थी और वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, बड़े ही संजीदी महिला। तो उन्होंने एक दिन तो मुझे परखा कि ये बातचीत करने वाले हैं या एक्चुअली कुछ करने वाले भी हैं कि नहीं। जब वो थोड़ी आश्वस्त हुई तो अगले दिन वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसमें से शी ओपन्ड अलमीरा, अलमीरा से एक लाल किताब एक कपड़े में बांधी हुई उन्होंने निकाली। और ये किताब जब उन्होंने उल्टा तो बहुत सुंदर एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन की तरह एक किताब उनके हाथों में था। और उन्होंने कहा कि 40 साल पहले अमेरिका में ये किताब निकली थी, जिसे पारसीज हर घर में इसको रखते हैं। उनका कहना था कि पूरे भारत में अगर 80-90 हजार पारसी फैमिलीज हैं तो समझिए कि 70,000 घरों में वो किताब मिलेगी। और वो एक तरह का प्राइमर है, वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिससे लोग लगातार कंसल्ट करते हैं, रेफरेंस की तरह देखते हैं। और वो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग ये लगा कि कहीं ना कहीं ये तो हर कम्युनिटी के पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे वो गिफ्ट कर सकें एक दूसरे को और नेक्स्ट जनरेशन उससे वो आगे लेके बढ़े। तो ये किताब उस जोनर की किताब है और 400 पेज की किताब है। इसे मैं और हमारे साथ प्रोफेसर पूनम बाला जो कि क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, हम दोनों ने मिलकर लिखा है और ये अंतिम चरण में है। अप्रैल में आपके हाथों में ये किताब होगी। Excellent. We'll be waiting for that. In fact, it's such a nice thought, when you spoke about this Parsi lady. क्योंकि जब हम generations की बात करते हैं, उन्हें देने के लिए to tell them what we do, who we are, it's always good to have a reference book. And I'm so glad that you have taken up this project of creating that book for Kayasthas. Thank you. Also, whenever one attempts to write a book of this volume or this stature, it's very important to have the information from a very authentic source. Correct. हम जब कुछ भी हमें पता करना होता है, our first go to thing is Google and Wikipedia, which is not really always the authentic source. So Correct. When you decided to write this book, what has been your methodology to acquire the authentic source of information? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कि आप जब इंसाइक्लोपीडिया जैसी चीज की बात कर रहे हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप पुख्ता करके चीजों को लिखें। और इसमें थोड़ा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स की उसकी ट्रेनिंग काम आई, जेएनयू जहाँ से मैं पीएचडी के इनिशियल डेज में हमारी मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग हुई वो मुझे काम आई। लेकिन हमने इसमें बिल्कुल अनकन्वेंशनल ढंग से एक शुरुआत की। उदाहरण के तौर पे आप सब लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में कुछ लोग बाहर में आप देखेंगे कि लिटरेचर बिकती है उस टेम्पल के इतिहास के बारे में और वो टूटे फूटे ढंग से लिखा होता है।
उसके उसकी बाइंडिंग भी ऐसे नहीं होती ग्रेट वगैरह। Unorganized. लेकिन तो हमने करीब करीब 32 मंदिरों से ये पुस्तिका उठाई Wow. और उसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करने लगा। उसको मैं क्रिटिक के तौर पे ना देख के मैं देखने लगा कि वो इंसाइट क्या दे रहे हैं, और ग्रेट इंसाइट आई गॉट फ्रॉम देम। नंबर वन, इसको हम सोशल साइंस की भाषा में लिटिल लिटरेचर कहते हैं। जो नॉर्मल किताबें होती हैं, एकेडमिक किताबें, उसको ग्रेट लिटरेचर कहते हैं, इसको लिटिल लिटरेचर कहते हैं। और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप समझ सकती हैं कि क्या खूबसूरत चीज हो। तो शुरुआत हमने एक्चुअली उस हिसाब से ग्रास रूट की जो लिटरेचर है, टेम्पल लिटरेचर, उससे की। उसके बाद एक और लेयर ऑफ लिटरेचर है जो आई एम श्योर सीकेपीज के बीच में भी एग्जिस्ट करता होगा, जिसे हम सेकेंड लेयर लिटरेचर कहते हैं, जो कम्युनिटी अपना श्रुति और स्मृति से बनाती है। आपने अपनी माँ से सुना, दादी से सुनी, और उसमें से कुछ लोग जो थोड़ा जिनको शौक होता है वो लिखते हैं, और करते करते तो हमारे पास 6-7 ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडियन वर्जन ही कायस्तों के घरों में बनी हुई ऐसी किताब मिली, 60-70 पेज की किताब। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताबों की तरह रेफरेंस्ड या बिब्लियोग्राफी वाली किताब नहीं थी, बट नेवरदलेस इट गेव यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जो नॉर्मली आपको फॉर्मल एकेडमिक किताबों में नहीं मिलती है। तीसरा लेयर था ऑफ कोर्स जो ग्रेट लिटरेचर, तो आप एक पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, जिसके मतलब है कि पहले उस विषय पे कितना कुछ लिखा जा चुका है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसमें रिव्यू करते हैं कि फलाने ने ये लिखा, फलाने ने ये लिखा, और उसके बाद आप तैयार होते हैं कि अच्छा ये तो है, अब क्या नहीं है वहां से शुरुआत की जाए। उसके बाद आप आर्काइव में जाते हैं, उसके बाद आप म्यूजियम्स में जाते हैं, उसके बाद आप ओरल परंपरा में जो पुराने पुराने लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कुछ उनको याद होता है, कुछ नहीं होता है, बट आपकी ट्रेनिंग से फिल्टरिंग कैसे करनी है, देन यू स्टार्ट टेकिंग दैट। आर्कियोलॉजिकल कुछ पीसेस मिलती हैं, कुछ लिटरेरी पीसेस मिलती हैं, तो ये सबका कॉम्बो बनकर वो इसका इंफॉर्मेशन सोर्स बिल्डअप होता है। और हम लोग अपने दोस्तों को भी ये बार बार दोहराते हैं कि विकिपीडिया या विकी अंकल और गूगल बाबा की दुनिया जहां खत्म होती है, आज के एक्चुअल रिसर्च की दुनिया वहां शुरू होती है। उस लिटरेचर का एक्सेस सबके पास है और वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, लेकिन उससे एक नुकसान ये हुआ है कि हर आदमी समझता है कि वो इस विषय का पंडित है, विकिपीडिया पढ़ के आया या गूगल पे 10 एंट्री पढ़ के आया, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस हाथ में आसमान में होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रोबिंग लिटिल लेयर्ड उसमें इंफॉर्मेशन के लिए, देन यू रियलाइज कि हाउ शैलो दे आर, बिकॉज तो आज की रिसर्च का एक चैलेंज है, और इस बुक में भी वो बड़ा चैलेंज था कि ऑर्गेनाइज लिटरेचर बहुत नहीं थी, जो थी उसको हमने खंगारा, अनऑर्गेनाइज लिटरेचर को इकट्ठा किया, जो वाचन परंपरा है उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत पुराने पुराने लोगों से, दादी से, नानी से या उस तरीके लोगों से बात की, और सबको मिलाकर कुछ ऐसे जगहों में एक्सेस पाए जो आम लोगों को नसीब नहीं होता है। आप जैसे श्रीनगर आज जाएंगी तो आपको सिक्योरिटी का ऐसा पहरा है कि आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो बड़े मुश्किल से, चूंकि हम लोगों का बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का है, तो स्पेशल परमिशन लेके हम लोग गए और वहां पर क्यूरेटर ने पूरा घुमाया, और वो एकदम आंख खोल देने वाला था। मैंने, आप समझिए 300-400 सालों का राज्य कश्मीर में पॉलिटिकली लोगों को इमेजिन करना भी मुश्किल था कुछ समय तक। तो इस तरह से लेयर्ड अपॉन लेयर को सैंडविच करके ये किताब बिल्डअप हुई। Okay. So when you embarked upon this journey of of this book, this research, what have been your milestones, your findings that you can tell us about? क्विकली कई फाइंडिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं, बट कुछ मिथ जो दिमाग में थे शुरू करने से पहले वो टूटी। अच्छा। हाँ, पहला मिथ, नेचुरली हम साइलोज में जीते हैं अपनी कम्युनिटी को लेके, तो हम लोग सोचते थे कि कायस्थ का मतलब
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत हुआ तो राजस्थान वगैरह, और उसमें सालों साल जीते चले गए। और तो पहली मान्यता तो ये टूटी कि ये बहुत बड़ा मिथ है। जरा अपने साइलों से निकलकर महाराष्ट्र गए तो आपसे मुलाकात हुई, आप सीकेपी से मिले तो लगा कि इनका कितना समृद्ध इतिहास है और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, और अपने ट्रेडिशन और हेरिटेज को लेके कितना प्राइड है इनमें। एक बड़ा अच्छा लगा, और एक इजाफा हुआ अंडरस्टैंडिंग की। उस तरफ गए तो चित्रसेनीय कायस्थ जिसको हम कहते हैं, वो बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा जैसे जगहों में, और बंगाल की विरासत तो सबसे बड़ी थी, लेकिन हम लोग का कॉन्शसनेस बहुत छोटा था। तो वो कॉन्शसनेस में एक ग्रेट एक्सपेंशन हुआ, और अंत में साउथ तो आंख खोल देने वाला था, क्योंकि जब भी हम लोग कहते थे कि साउथ में भी कायस्थ है, तो लोग कहते थे कोई तोता मैना की कहानी सुना रहा होगा ये। लेकिन जब वहां गए और वहां के एसोसिएशन से इंटरेक्शन हुआ, और वो जब जुड़ने लगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उनके यहाँ चित्रगुप्त पूजा करते हुए उनको देखा। कांचीपुरम में चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल चोला डायनेस्टी के समय का बना हुआ, बहुत खूबसूरत ढंग से एग्जिस्ट करता है। सरकार देखभाल करती है, और वहां के लोकल कायस्थ कम्युनिटी को उसके देखभाल का उन्होंने जिम्मा भी दिया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द काइंड ऑफ, एंड देन उनसे वर्ड ऑफ माउथ से जब हम बात करने लगे, when we started talking to them, they shared कि ये तो आप केवल ट्रेलर देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में 13 और मंदिर है। ओहो देखिए हमें तो पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आप, मैं एक, और मेरे लिए वहाँ के एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया और हैंड होल्डिंग की हमारी, और उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ मंदिरों के हिस्सा थे। तो 13 मंदिरों को हमने फोटोग्राफ करके, डॉक्यूमेंट करके आज आपके सामने पेश करने को तैयार हैं। तो उसी तरह से इमेजिनेशन में भी कहीं नहीं आया कि चित्रगुप्त सर्किट भी एक चीज हो सकती है। राम सर्किट सुना है, सीता सर्किट सुना है, कृष्ण सर्किट सुना है, चित्रगुप्त सर्किट तो पता चला कि अयोध्या में एक काफी पौराणिक मंदिर है। उज्जैन का तो कहना ही क्या। उसके बाद एक पाटलिपुत्रा, जो उस समय का मगध अंपायर का सिटाडेल था, वहां एक काफी पुरानी मंदिर है, और कांचीपुरम में तो है ही। तो ये 4 जो मंदिर हैं, ये मिलके जिसको चित्रगुप्त धाम कहते हैं या सर्किट कहते हैं, वो क्रिएट हुए। और लास्ट लेयर था कि ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से लेकर बंगाल और क्या असम तक, चित्रगुप्त जी का मंदिर छोटा बड़ा बड़े श्रद्धा से लोग जाते हैं, ये करते हैं। तो वो अवेयरनेस, तो यू रियलाइज कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, वो एक एकीकरण का मेजर सोर्स है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब आपको लगता है कि हम लोग का मूल सोर्स एक ही है। Correct. And I'm sure this has been an eye-opener for you, and this would be for us also, because as you correctly said, we all have been living in silos, Yes. but finally we are one. Yeah. That's the All fun. right, that's right. Also, Udayji, when you talk about our roots, where we really originated from, and when we talk about the Varna system that we had in existence, so where do we stand? I mean, where do we Kayastha stand in that Varna system, the legal system that we had? वर्षा जी, इसको लेके काफी भ्रांतियां हैं पूरे भारत में, और काफी कंफ्यूजन सा एक क्रिएट हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम शूद्र हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, कुछ लोग सोचते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है अगर आप किसी से पूछें तो इसमें 2 तरह की धारणाएं, पुख्ता धारणाएं मिलती हैं। पहली धारणा, जो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने इनिशियली एक बड़े ही कॉन्स्पिरेटोरियल एटमॉस्फेयर में जजमेंट जो दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये शूद्र हैं क्योंकि इन्होंने उपनयन सेरेमनी छोड़ दिया है। एक समय में क्षत्रिय थे, लेकिन कालांतर में इनका मलेक्षीकरण हुआ है।
लाइफस्टाइल जो मुस्लिम्स के साथ रह के खान पान लाइफस्टाइल वो बदला है, इनका मरक्षीकरण हो गया है। इन्होंने टाइटल्स अलग रख लिए हैं, शादियां इन्होंने अपने वर्ण के बाद करनी शुरू की है और कह के उन्होंने डब कर दिया कि आप उसको। फिर बड़े शिद्दत से कुछ हमारे कम्युनिटी लीडर्स जैसे मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी बहुत ब्राइट लॉयर थे, उन लोगों ने जिम्मा उठाया और अंत में पटना हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत क्लियर कट फैसला दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट के तमाम उन सुपरफिशियल आर्गुमेंट्स को बुरी तरह उन्होंने काटा। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरे वर्ण के लोग जब बाहर चले जाते हैं तो क्या उनका मलक्षीकरण नहीं होता? तो क्या जब लौट के आते हैं तो आप कहते हैं कि आप इस वर्ण के नहीं रहे? उसी तरह से उपनयन सेरेमनी कई पढ़े लिखे दूसरे वर्ण के लोगों ने एग्जाम्पल्स साइट किए, कई दर्जनों एग्जाम्पल साइट किए, अब बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल साइट किए कि इन्होंने उपनयन सेरेमनी नहीं कराया, इन्होंने नहीं कराया, तो क्या आपने बैट लिस्टिंग कर दी? इन्होंने अगर लव मैरिज कर लिया तो आपने कह दिया कि वर्ण इनका करके वो काटा। फिर बिल्डअप किया कि ये पूरे भारत में कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर गुजरात से लेकर चोलवन से लेकर सतवाना से लेकर पालवन से लेकर ये बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, और ये 1 साल 2 साल का उनका इतिहास नहीं था, सैकड़ों सैकड़ों साल लोगों ने, और ये अंत में उसको समअप किया उन्होंने कि ये क्षत्रिय है वर्ण से और जाति इनकी कायस्थ है। तो आज के डेट में सीकेपीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी जगह भी जो कंफ्यूजन का लेयर है बहुत हद तक दूर हो चुका है। हाँ, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि हम ब्राह्मणों में 2 हिस्सों में बस बट गए, एक कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, एक पढ़ने लिखने वाले बन गए, और जो सेकुलर नॉलेज वाले बन गए वो हो गए कायस्थ, जो स्क्रिप्चरल नॉलेज वाले हो गए वो हो गए ब्राह्मण। अभी भी वो भ्रांतियां चल रही हैं, लेकिन कम से कम मेजॉरिटी व्यू आज कोर्ट को ही मानता है, तो उस हिसाब से क्षत्रिय वर्ण की बात स्टैब्लिश फर्मली हो चुकी है। And I think we all should be thankful to Mr. Kalidas for taking up that that cause. Actually वो बहुत बड़े इंसान थे और उन्होंने very young bright lawyer who earned in crores that time, और 5 लाख रुपया केवल अपनी वाइफ के लिए, बच्चे उनके नहीं थे। और एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ, और वो इंसिस्ट नेचुरली एक किसी औरत के लिए एक बच्चा बहुत बड़ा, तो इंसिस्ट करती थी कि हम लोग गोद ले लें। तो उन्होंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सोचा है कि मैं 1000 बच्चों का गोद लूं। तो वो एकदम घबरा गई वाइफ कि आप ये क्या बोल रहे हैं? बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा हम एक स्कूल सेटअप करेंगे, कायस्थ पाठशाला उस तरह से सेटअप हुआ, और हजारों बच्चों क्या कितने बच्चों को उन्होंने गोद लिए। आज 2500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इलाहाबाद एक समय में एशिया का सबसे बड़ा ये ट्रस्ट होता था, कायस्थ पाठशाला। और वो केवल पाठशाला नहीं है, उसमें मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जनरल कॉलेजेस हैं। आज के डेट में इलाहाबाद में उसका एक मेजर फुटप्रिंट है। तो एक आदमी ये कर सकता है, आप समझ लो सकती हैं कि अगर लोग मिल जाएं तो क्या से क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये जिम्मेवारी उठाई कि वी शुड फाइट इट आउट, और कायस्थ एथनोलॉजी लिखकर उन्होंने एक एक रेफरेंसिंग को साइट किया। बहुत गजब की वो किताब है। आज रिसर्च लोग जो करते हैं उनको पढ़ना चाहिए कि रेफरेंसिंग कैसे किया जाए, और बहुत ही रिगरसली लिखी हुई किताब है। उसको कोर्ट ने एडमिट किया और उसके बाद की कहानी आपके सामने बयान कर चुका हूँ। What a great man. So Udayji, now coming back to CKPs, and your research on CKPs, what have you is there anything particular, any icons that you you have found, if you can tell us more on that? देखिए, कायस्थों में आइकॉन्स तो इतने हैं कि एक्चुअली एक चैप्टर है किताब की हॉल ऑफ फेम, और सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक मेरा रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन लिख के चले गए, लेकिन क्या छोड़ूं और क्या इंक्लूड करूं। इंक्लूड जो आप करेंगे वो तो आप शाबाशी देना दे, जिसको गलती से छूट गया
वो आपको गालियां निश्चित देगा, ये खतरा है, और आज भी मैं उससे जूझ रहा हूँ। सो सीकेपीज भी इतना पुराना इतिहास, इतना गौरवशाली कम्युनिटी का हेरिटेज है। किसको किसका नाम ले न ले, तो कुछ बहुत बड़े लोगों का ही नाम ले लेता हूँ, और मैं तो दिया दिखा रहा हूँ सूरज को, नाम लेने की इनकी जरूरत नहीं है। जैसे कुका प्रधान जी, अब कुका प्रधान जी के सैक्रिफाइस को कौन सीकेपी या कौन भारतीय नहीं जानता। क्या मतलब वेलर की बात जब होती है, कायस्थ के 3 विजडम, नॉलेज और वेलर, तो वेलर क्वोशंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको कह सकते हैं, वो आपने मिला। और जिस तरह से उन्होंने छक्के छुड़ाए उस समय के खिलजी के सेनाओं का, कि जब फाइनली उन्होंने उनको मारा, तो जस्ट टू प्रूव कि फाइनली वी हैव किल्ड दिस मैन, उनके गले को काट के यही दिल्ली में मेहरौली के चौक पर 3 दिन रखा, ताकि वो पूरी दुनिया जाने कि हाँ, फाइनली दे हैव बीन एबल टू कैप्चर एंड किल दिस फेलो। सो दैट्स द काइंड ऑफ। उसी तरह से बाजी प्रभु देशपांडे जी का नाम कौन नहीं जानता है, जो शिवाजी के लिए उन्होंने, और शिवाजी ने उसके लिए उनको एक्नॉलेज भी कहा कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े सपूत के तौर पे उन्होंने ये शब्द नवाजे। तो उनकी 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 कहानी भी जब मैंने पढ़ा, मेरे रोए खड़े हो गए कि व्हाट यू कैन डू टू सेव द ऑनर ऑफ योर लैंड एंड ऑफ योर किंग एंड ऑफ योर लीडर। ये सब तो साधारण इंसान नहीं थे। तो उसी तरह से आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो कारगिल अटैक में किसने ऑर्डर किया? तो सीकेपी लीडर ही थे। तो जब हम बात करते हैं तो अनिल चिटनिस जी का या जनरल वैद्या का, मतलब जनरल वैद्या के बारे में आज भी पंजाब में जाएं तो लोग थोड़े दहशत गर्द हो जाएंगे अगर आप बताएं कि मैं जनरल वैद्या की फैमिली की हूँ। सो दैट्स द काइंड ऑफ, तो वेलर तो इनके खून में है, और Correct. वो एंटरप्राइज तो आज के जिनको हम बाल केशव ठाकरे जी कहते हैं, उन्होंने एक मापदंड बनाए और महाराष्ट्र को एक अलग आइडेंटिटी दी। को कौन भूल सकता है? उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आगे उद्धव ठाकरे साहब आज के चीफ मिनिस्टर हैं। पुराने अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में चले जाएं, अनगिनत नाम है। हम लोग को एक बाहर दूर से हमारे जमाने की तनुजा जी थी, उनकी याद जरूर है, आती है। नूतन जी की याद उनसे ज्यादा आती है। अब उनकी बेटियों की याद आपको आती होगी, उनकी पोतियों की याद आपके बच्चों को आएगी। सो दैट्स द काइंड ऑफ ह्यूज एक पर एक। आई एम जस्ट साइटिंग फ्यू। सिविल सर्विसेज में सीडी देशमुख साहब का नाम लें तो कंट्री के टॉप 10 सिविल सर्वेंट्स में आज भी लोग उनको श्रद्धा से गिनते हैं और नाम बताते हैं। मॉडर्न नेम्स भी उसी तरह से, मतलब किरण कार्निक साहब का एग्जाम्पल ले लें आप। उसके साथ मैं तो नहीं मिला हूं, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। राम गणेश गडकरी साहब के बारे में, उनकी कविता, उनकी कहानी हर सीकेपी के जुबान पे है। तो ये आइकन्स का एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट मत सोचिएगा, नाम बहुत है। And I'm sure you would have had tough time to really pick Yes. one, and Yes. it's a problem. But I think it's a good problem to have. You have so True, many true. illustrious names to choose Very from. true. Okay. Like this, another love of us CKPs is our food. Yeah. I mean, I always call it's a binding glue, that sticks us together. And we also have CKP Food Festival that we organize every year. I'm sure Samir Gupte ji hai wo every year organize karte hain, which has actually given it a visibility and a great platform. So uske bare mein I actually just wanted to know, so jab aapne ye research ki, so in terms of the food habits that we have, what similarities that you found amongst CKPs? Is there anything, or is it very different from each other? All CKPs and any other guys in the country are great foodies. Yes. And a great connoisseur of food. So much so कि 3 कहानियां हैं इतिहास में जहां पर राजाओं ने अपने पड़ोसी राज्य पे इसलिए आक्रमण कर दिया कि उनके रसोइये बड़े अच्छे थे। सोने और चांदी के लिए नहीं,
इसीलिए कि उनके रसोइयों को वो लूट कर लाएंगे ताकि उनका खाना खजाना बढ़ेगा. So all of them are great food connoisseur, लेकिन सीकेपी नेचुरली जिस इलाके में रहते हैं, फूड एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं आप उस एनवायरनमेंट से पिकअप करते हैं उसको. तो सी फूड उसका एलिमेंट बड़ा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और उसमें उसकी वैरायटी गजब की है जो मुझे पता चला. और इसी फूड का क्या इंपॉर्टेंस है इससे भी पता चला और कितना पॉपुलर क्वेश्चन वो एक फैक्टर हो सकता है कि ऑल इंडिया चंद्रसेनी कायस्थ मध्यवर्ती संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी खुद बड़े फूड कनोजर हैं और कई फूड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं. और उन्होंने तो शेयर किया हमसे एक दो वीडियो, तो मैं देख के दंग रह गया कि क्या बात है. वो बता रहे थे कि बॉम्बे में ही यू हैव अ नंबर ऑफ, आई शेयर्ड विद सम very senior people in Mumbai and they were really thrilled when they visited those places. So एक खाना खजाना तो सीकेपी की विरासत, नेचुरल विरासत है. उनका खास मसाला है, उनके खास मिठाइयाँ हैं which is not so easy to make and नेचर के साथ अलाइन करके जो एक बनाने की प्रथा सीकेपी की है वो बहुत कुछ महाराष्ट्र के लैंड को रिफ्लेक्ट करती है. तो जैसे कहते हैं सन ऑफ द सॉइल, फूड ऑफ द सॉइल में वो इम्पोर्टेड, मैकेनिकली इम्पोर्टेड नहीं है. अगर वो इम्पोर्टेड है भी तो बहुत क्रिएटिवली अडेप्टेड है. उसी तरह से अगर कंपेयर करें तो जैसे नॉर्थ इंडिया में आप मटन पे खाने पे जोर आपको मिलेगा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और उस तरह के इलाके में फूडी सम है और नॉन वेजिटेरियन भी मोस्टली हैं. और ये भी इंटरेस्टिंग है कि औरतें कई वेजिटेरियन हैं लेकिन वो ऐसी नॉन वेजिटेरियन फूड बनाती हैं. और हम लोग के लिए आज तक ये रहस्यमय बना हुआ है. मेरी एक सिस्टर है, शी इज एन एक्सलेंट शेफ, एक पर एक चीज आपको नॉन वेज में खिलाएंगी लेकिन खुद वो प्याज लहसुन भी नहीं खाती. तो ये सब कुछ बड़ा इनका तीसरा इनका इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये रॉयल्टी के साथ बहुत क्लोज रिश्ता रहा. तो शाही खाने जो होते हैं, शाही खाने खजाने का एक्सपोजर, खाना तो इवेंचुअली इज आल्सो मैटर ऑफ हाउ मच एक्सपोज यू आर एंड वेयर यू फाइंड कि ये लोग बहुत सारी चीज रजवाड़ों से इन्होंने पिक किया और उसको अडेप्ट किया. तो इनका एक तरह का बहुत इंटीग्रेशन पर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग मिलेगा. बंगाल चले जाएं तो मछली पर बहुत जोर है और उनकी नफासत एक अलग तरह की है. तो एक्चुअली मैं समीर गुप्ते साहब को कह रहा था कि व्हाई डोंट यू think of an all India कायस्थ food festival. Oh, that's a great idea. Let there be a little competition between CKP food and North Indian food and Eastern India Bengali food and food from Karanagars and food from Mudaliars, and let's see. Oh, yes. That would be such a fabulous event for us all foodies. Yeah, and whole Bombay and Delhi, they would run. I'm sure. Absolutely. And in fact, the CKP food festival that we have every year, we have people traveling from as far as Nasik and Pune and other Gujarat, basically only to visit this festival. So that talks about how much important it is to us. Yes. So the credit goes to all of you, and we feel very connected also because of that. See, our faces smiling when we start talking about food. Yeah, very much. I mean, I have a friend in West Bengal, Kader, and his son went abroad for studies, and midway he decided to study food. Came back and set up a restaurant in Patna, and his father was a little jittery कि यार IPS officer का बेटा आज के डेट में it's doing so well कि everybody is talking about that restaurant. And उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रीट फूड है जिससे खाने में हमारा जो प्रिविलेज क्लास है थोड़ा नाक भौं से कुड़ता है कि पता नहीं तेल कैसा होगा, हाइजीन कैसी होगी, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ स्ट्रीट फूड को परोसना शुरू किया. लाइन लगी रहती है साहब. अच्छा, इंटरेस्टिंग. Nice, very nice. Yeah. Also, sometimes
that I was thinking about. I mean, all us CKPs who are currently, I mean, kind of staying in silos, do we have any associations or any organizations that we have tried creating or we have in existence that actually can connect us to each other? If you have Yeah, found in anything on fact, that front. you have a very old association, and whenever I have talked to Sanjeev Suleji, your Hmm. vice president, and Sameer ji, we have been discussing कि कैसे, because ऑल इंडिया कायस्थ महासभा एक तरफ है और दूसरी तरफ चंद्रसेनी कायस्थ, इनफैक्ट सुले जी इज वेरी पर्टिकुलर कि हम सीकेपी करके इसको शॉर्टकट मारते हैं। और कुछ समय के बाद बच्चों को तो चाहिए फिक्स, क्विक फिक्स नूडल की तरह हर कुछ, तो कहीं सीकेपी उनकी जुबान में चिपक ना जाए, तो थोड़ा कष्ट करके हम लोग सीकेपी ना बोल के हम That's लोग good. चंद्रसेनीय कायस्थ बोले। मैंने कहा ये आपकी बात एकदम मैं दुरुस्त, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो ये एक चर्चा, पहले तो आपको बता दूं कि जब अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसका मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसमें जब वो सेटअप हुआ तो दादा भाई नरोजी ने इंस्पायर किया कि अगर भारत में जो कम्युनिटीज लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं है वो अपने को ऑर्गेनाइज करें तो दे कैन बिकम रोल मॉडल फॉर दिस। और उनकी प्रेरणा से वो, मैंने आपको बताया केपी मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी को, उनकी प्रेरणा से उस समय ऑल इंडिया कायस्थ महासभा भी बना। लेकिन और उसके बाद आप कई बने, दूसरे कम्युनिटीज ने भी अपना क्रिएट किया। लेकिन साथ के साथ जब मैंने थोड़ा चंद्रसेनी कायस्थों पर पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के 1886 में ही 1886 में ही खांडूराव चिटनिस साहब के इंस्पिरेशन से ऑलरेडी एक चंद्रसेनी कायस्थ सभा की स्थापना हो चुकी थी। और वो यात्रा कभी रिवर्स नहीं हुई, कभी मध्यम नहीं पड़ी। ऑल इंडिया कायस्थ महासभा तो फिर भी एक उत्थान के बाद थोड़े दिन सुसुप्त अवस्था में रहा, लेकिन सीकेपीएस कहते थे उसको, it did not look back at all. In fact, in 1927, they localized it by opening branches in different parts of the CKP's Chandraseni Kaya settlement, not only in Maharashtra but also in Gujarat and Madhya Pradesh. और उसके बाद इनको लगा कि हमें एक नेशनल लेवल की बॉडी बनानी चाहिए, तो एक वर्किंग, बड़े ऑर्गेनाइज्ड ढंग से उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने फाइनली 1971 में एक रिपोर्ट दिया जिसके बेसिस पे अखिल भारतीय चंद्रसेनी कायस्थ मध्यवर्ती संस्थान स्थापना हुई। और आज वो बहुत ढंग से चल रहा है, आपकी बिल्डिंग है, और बहुत, मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ और भी हमारे चंद्रसेनी बंधुओं से। इट्स डूइंग सो वेल, सो इट्स अ ग्रेट हिस्ट्री, एंड ऑलमोस्ट शोल्डर टू शोल्डर ऑल इंडिया कायस्थ महासभा एंड चंद्रसेनी कायस्थों की सभा काम करती रही है। अंत में इस विषय में ये भी बता दूं आपको वर्षा जी की जो शुरू में ऑल इंडिया कायस्थ महासभा के जो अधिवेशन होते थे, जो सेशंस होते थे, उन सेशंस में 3 दफा, जिसमें से 2 नाम मैं आइडेंटिफाई करके मैंने संजीव जी से शेयर भी किया, ये लोग वहां के चीफ ऑफिस बेयरर बने। और तो उस समय से ये ट्रेडिशनल दोस्ती थी। कालांतर में हम लोग थोड़े, वो दोस्ती फीकी पड़ गई, और अब खुशी है कि फिर हम लोग सब जुड़ गए। और अभी टाइम है, अगेन हम जुड़ रहे हैं। जी जी। In fact, I really feel it's a great time that we are connecting back. We are brothers and sisters, right? जो होते हैं ना, आपने किताब लिखी है कुंभ पे, तो वैसे ही शायद हमें कुंभ में बिछड़े हुए। हाँ बिल्कुल, कुंभ का मेजर थीम होता था सेपरेटेड एट बर्थ, कि वहां गए, कुंभ में बिछड़ गए, और मरने के पहले कहीं मिल गए, तो फिर जिंदगी की कहानी बनी। तो कुछ उस तरह की कहानी एक्चुअली मैं इस संदर्भ में आपको वर्षा जी, अभी जब मैं इंटरैक्ट कर रहा था तो मांडवगढ़ तक की हिस्ट्री तो बहुत कॉन्क्रीट
मिलती है चंद्रसेनी कायस्थों की। और जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेरी एविडेंस है, मेमोरी भी परपेचुएट कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। लेकिन उसके आगे जब बढ़ते हैं तो फिर अटकलें लगाई जाती हैं, जिसको प्रोटो हिस्ट्री हम कहते हैं। तो उसमें और प्रोटो हिस्ट्री के बाद थर्ड लेयर में माइथोलॉजी पे पहुंचते हैं। तो माइथोलॉजी तो लोगों को पता है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्रीज की जो हम इसमें थोड़े से निकाल पाए हैं वो अपने आप में बड़ा एक्साइटिंग है। अगर आप बिल्कुल ही ओरिजिनल इसमें जाएं तो चित्रगुप्त जी अवतरित हुए कायथा गांव, एक गांव है मध्य प्रदेश में, उज्जैन के पास, वहां उनकी शादियां 2 हुई, उससे 12 बच्चे हुए। उन बच्चों को गुरुकुल भेज के पढ़ा, पठन पाठन के बाद उनको अलग अलग दिशाओं में उन्होंने भेजा भारत के। कोई कश्मीर गया, कोई बंगाल गया, बंगाल वाला वहां इतना उसने अपना यश कमाया कि उनके नाम से बंगाल का नाम ही पड़ गया गौड़ प्रदेश। पुराना नाम बंगाल का गौड़ प्रदेश है, और गौड़ उस 12 बच्चे में से एक बच्चे का नाम है। एक बच्चा चला गया ऊपर कश्मीर, उसी में से 3 बच्चे एक्चुअली कश्मीर की तरफ गए, अम्बस्ट कश्मीर की तरफ गए, श्रीवास्तव कश्मीर की तरफ गए, सक्सेना गए, और चौथे में सुरध्वज के जाने की भी बात आती है। तो उसमें से एक जो डायनेस्टीज बनी है, माइंड यू वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटो हिस्ट्री, सो वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री, और हजारों साल के इतिहास को बहुत कॉन्क्रीट ढंग से आप डॉटिंग नहीं कर सकते। लेकिन मोटी चीज जो निकल के आती है कि 3 मेजर डायनेस्टीज हैं जिसके बारे में रिसर्च किया जाना बाकी है। पहला, जिसे हम कहते हैं चैत्र वंशीय, चैत्र वंश, और वो चैत्र वंश में कुछ मैंने नोट किया, राजा हुए राजा सुरथ, चित्ररथ, ये सब उसके मेजर राजा हुए। और इंटरेस्टिंग है कि इसमें से कई बड़े बड़े राजा हिंदुस्तान के, जिसका एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में, इतिहास में जिक्र तक नहीं है। मंधाता, राजा मंधाता, राजा जनक, इस तरह के दर्जनों राजा हैं जिनको माइथोलॉजिकल फिगर मान लिया है। मैं उस बहस में अभी जानने से भटक जाऊंगा। कायस्थों की ही, और खास तौर पे चंद्रसेनी कायस्थों के ही कॉन्टेक्स्ट को बता रहा हूं। इन चैत्र वंश के बाद दूसरा वंश आया कैथिया वंश, और इस कैथिया वंश, जिससे कैथी लिपि निकली एक्चुअली, और कैथिया वंश में का संबंध है भींड, एक जगह पाकिस्तान के पॉकेट में है, वहां पर उन्होंने हिंगलाज टेम्पल की स्थापना की। आज भी वो टेम्पल वहां बहुत सिद्ध टेम्पल माना जाता है देवी का। और ये वहां के जो राजा थे, ये कैथिया वंश के, इनके 3 बच्चे हुए, और ये 3 पुत्र, इनके पुत्र हैं महेंद्र कैथिया, कुलश्रेष्ठ कैथिया और वीरसेन कैथिया। और मान्यता ये है कि वीरसेन के बच्चे का नाम ही चंद्रसेन था। और चंद्रसेन, That where we go back to. तो चंद्रसेन की बात की कहानी आपको पता है कि चंद्रसेन, तो ये हजारों साल पुरानी इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जिसको जोड़ना बहुत डेलिकेट काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन आपको बहुत मजा आता है, बिकॉज आप केवल मैकेनिकल हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, आप प्रोटो हिस्ट्री देख रहे हैं। आप प्रोटो हिस्ट्री से आगे जाके माइथोलॉजी को देख रहे हैं, तो वहां माइथोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फेबल्स, कई चीजें आके संगम की तरफ मर्ज करती, और उससे जो कहानी निकलती है वो हमारे आपके दिलों को जोड़ती। Absolutely, absolutely. In fact, this is so interesting, Udayji, and I'm sure whatever, I mean, you have told us about your findings, I'm so excited to read this book. Thank you. Something that tells me about my history, my origins, Yeah. something that I ought to know. So now you please tell us, where can we buy this book, and how it's going to be available? Is it only a hard copy, or will there also be a e-copy? The cost of that, if you can tell us more on that. Well, ये तो आपने एकदम काम की बात कर दी। मैं
आपको बताऊं कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसका लॉन्च हम लोग चैत्र मास के दिन करेंगे। क्यों चैत्र मास के दिन? क्योंकि उसी दिन उनका बर्थ डे है। चित्रगुप्त के बर्थडे के दिन ही इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, और वो 27 अप्रैल 2021 को डेट एक तय हुआ है लॉन्च का। और हमें लगता है कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी लोगों में कि ये हैप्पी बर्थडे वी मस्ट से टू आवर ओन एंसेस्ट्रल गॉड। वन। दूसरी, किताब का दाम 3,000 रुपया है। ये हार्ड कॉपी शुरू में छपेगी, बाद में इसको हम लोग ले जाएंगे पेपर बैग पे, और लास्ट स्टेज जैसा कि होता है इस ट्रेड में, देन विल गो ऑन टू किंडल एटसेट्रा। अवेलेबिलिटी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन में हिंदुस्तान के जो इम्पोर्टेंट बुक स्टोर्स हैं वहाँ एक कॉपी दिखेगी, उसके साथ साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी we want to, so that won't be a problem, I hope, I suppose. But I would request all of you also that such project in the making को आप कनेक्ट करें, और एक फेसबुक पेज क्रिएट हुई है, और 2-2.5 महीने के अंदर ही 2,500 लोग बिना एक पैसे एडवर्टीजमेंट खर्च किए हुए जुड़ते जा रहे हैं। और ये सब लोग केवल नॉर्थ इंडिया के कायस्थ नहीं है, उसमें बहुत सारे चंद्रसेनी कायस्थ बंधु हैं, बंगाल के कायस्थ हैं, उड़ीसा के कायस्थ हैं, साउथ के हमारे बहुत सारे कायस्थ हैं। सो दैट वे इसको इंसाइक्लोपीडिया, कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया जैसे टाइप करेंगे फेसबुक पे तो आएगा, उससे कनेक्ट करें, लाइक करेंगे तो आपको पोस्ट आता रहेगा, तो यू विल नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ a project like this in the making. Sure. So I think the first thing, till the time it's actually officially launched, all of us can, like the Kayastha Encyclopedia, this Facebook page, और उस पे तो हमें, details, मतलब updates तो आते रहेंगे. And whenever it is ready, ready, we all can book our copy. Yes. I think this is something all of us should definitely have, at our home. And this is something actually I feel like that Parsi lady suggested to you, whenever a marriage happens in the family, whether it's marriage within Kayasthas or outside Kayasthas, this is a book that we actually can give to our generation, which actually can become their reference book. In fact, और ये काफी एक प्रथा हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में है कि जब लड़की की शादी होती है और लड़की नई जगह जाती है तो उसको उस घर से बांधने के लिए इमोशनली वो लड़की को से 5 पेड़ लगवाते हैं। और वो उसको एक तरह से जिम्मेवारी दी जाती है कि और कोई काम करो ना करो, लेकिन इन पेड़ों को जिंदा रखना तुम्हारा दायित्व है। एंड शी ग्रोज विद द ट्री। So this will be a book with which generations can grow and can be glued, and it can really have a very positive impact from them. हम लोग कई बार अपनी जड़ों से जो कटते हैं वो ना कटें, और लक्ष्मण रेखा कैसे मॉडर्निटी के दौर में मॉडर्निटी कितनी हो, ट्रेडिशनलिटी कितनी हो, उसको मिक्स करें। उसमें हमें वो एक तो रूट्स एंड विंग्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये रूट्स पार्ट बतौर इट विल हेल्प all of us a great deal, ऐसा मुझे लगता है। Absolutely. A tree can really flourish when only it's rooted to the ground, Absolutely. So, I think तो आप एयरपोर्ट में कंट्रोल रूम में बार-बार इसको दोहराता हूँ, अगर फ्लाइट ऊपर गई और कंट्रोल रूम से कट गई तो या तो क्रैश करेगी या कटे पतंग की तरह वो गिरेगी। तो कटी पतंग हमारी कम्युनिटी कभी ना बने, इसी आशा के साथ हम लोगों ने इसको खड़ा किया है। तो विश्वास है आप जैसे प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट लोग के हाथ में जब ये बात जाएगी, उनकी जुबान से सरस्वती की तरह इसके बारे में प्रचार होगा, तो लोग जरूर इससे प्रभावित होंगे और कर देंगे। I'm sure, I have no doubt that this is going to be really sought after, book that all Kayasthas, all of us CKPs would definitely want to have. So I'm sure after, they hear you, they would definitely first thing do is visit the, Facebook page and like it, and then, reach out to you whenever they want to buy a copy. So thank you so much, Uday ji. It's been such a pleasure talking to you. And, we really look forward to have this book launched. Thank you, Varsha ji. Thank you indeed. The way you have opened up
a new possibility of a very, very different kind of relationship. And through you, you are like a window to the community for us. तो संजीव जी हैं, आप हैं, समीर जी हैं, जितने लोगों से मैं अंजलि दिघे जी से भी इंटरेक्ट करता हूँ कभी कभी, वो वहाँ उज्जैन के पास है. इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. एंड एक्चुअली लगता है कुंभ में हम लोग कभी बिछड़ गए थे और फिर मिल रहे हैं. And this is the time to reunite. Yeah. So thank you so much. Thank you so much. Wish you all the best. And to all the readers, thank you. Thank you.